our next resource person with us. So we start second session. We are heading towards the second session of day 11 of our 15 days research methodology add-on course. I would like to invite Tarunum Khanji to introduce our resource person of second session to our participants. Good afternoon, respected guests, teachers, PhD scholar, and all the students who are virtually present here. This is Tarannum Khan, and I am so pleased to be with you this afternoon and to have the chance to introduce our guest speaker. Firstly, I would like to thank the coordinating committee and Mrs. Mamta Vajpayee ma'am for all their hard work in planning this add-on course. Now we move forward towards the introduction of our respected guest, Dr. Kajol Kathuria ma'am. She has completed her graduation from Lingyas University in 2015 and also her post graduation from Galgotia University in 2019 and currently pursuing PhD degree from JP Institute of Information Technology. She has worked as assistant professor in Punema University and also worked as assistant professor in Sharda University and Noida Institute of Engineering and Technology, and currently working as assistant professor in JL Bajaj Institute of Technology and Management, Noida. Now we would like to tell you about some research paper published by ma'am. The first one is efficient way to identify online fake reviews at International Conference on Research Advancement and Innovation in Management, Media Science, Technology, Education and Legal Issues in 2022. And the second one is an efficient technique for scheduling algorithm in real time environment for optimizing operating system at International Journal of Computer Science and Wireless Security in Feb 2018. There is much more to tell about the achievements of ma'am, but we request ma'am to directly join with us. And today's second session topic is cluster analysis. Without any further delay, please join me in welcoming our guest speaker, Dr. Kajol Kathuria ma'am. Good afternoon, all of you. Thank you so much, Taranu ma'am. Thank you very much for such an introduction. I'll be presenting a lecture on a cluster analysis today. Let me just share my slides with you. I hope my screen is visible to all of you. Is my screen visible to all? Yes, ma'am. All right. Ma'am, one more thing. Most of our learners are from Hindi background, so if अच्छा it's ठीक है, possible. राइट. सो Thank you. मैं हिंदी में बात करना, या बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग इट. मैं हिंदी में अच्छे से बात समझा पाऊंगी. मेनी ऑफ यू नो कि क्लस्टर क्या होता है. अगर मैं सिंपल एक हिंदी भाषा में पूछूं कि क्लस्टर का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? ओके, लेट मी ब्रेक द आइज हियर. क्लस्टर मतलब होता है झुंड. ठीक है. क्लस्टर मतलब होता है झुंड, ग्रुप, समूह. ठीक है, या फिर एक ग्रुप. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लस्टर एनालिसिस में हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसका रीजन क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने का. सो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम डेटा एनालिसिस करना चाह रहे हैं. क्लस्टर एनालिसिस बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एनालिसिस? डेटा, आप क्योंकि आप पीएचडी स्कॉलर्स हैं, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके यहाँ आए हैं, तो all of you must be knowing कि what is data. Data basically is a collection of raw facts and figures. Collection of raw facts and figures. अब इस डेटा को एनालाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है.
मेरे पास डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मेरे पास डेटा इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है। टेक्स्ट मतलब जैसे अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे आपके पास कुछ टेक्स्ट प्रेज़ेंट होते हैं, किस फॉर्म में? इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, किस फॉर्म में? डिस्क्रिप्शन होगा प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट को किसी ने खरीदा होगा, खरीदने के बाद उसको यूज़ किया होगा, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, उसका रिव्यू पोस्ट किया होगा अमेज़न पे या फिर फ्लिपकार्ट पे या अदर इस तरह की साइट्स पे। तो ये सारा डेटा किस फॉर्म में है? टेक्सचुअल फॉर्म में है। कुछ डेटा वीडियोज़ की फॉर्म में है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब, डेटा सारा वीडियो की फॉर्म में होता है। वहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्म में भी डेटा होता है, जैसे कि जब हम कमेंट्स करते हैं, तो वो डेटा किस में आता है? टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा आता है। सो ये जो पूरा एनालिसिस है किस फॉर्म में होगा? ये डेटा एनालिसिस की फॉर्म में होगा। अब आप मुझसे बोल सकते हैं कि मैम इतना सारा डेटा है, इमेज की फॉर्म में भी डेटा है, डेटा वीडियोज़ की फॉर्म में भी अवेलेबल है, डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी अवेलेबल है, डेटा नंबर्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। नाउ हियर कम्स द क्लस्टर एनालिसिस। ओके, हियर कम्स द क्लस्टर एनालिसिस। लेट मी तो मैं आपको एक बता देती हूँ कि क्लस्टर एनालिसिस का बेसिक डेफिनेशन क्या है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। So it is a statistical method in research that allow researchers to bucket or group a set of objects into small but distinct cluster that differs in characteristics from other such different clusters. इसका सिंपल सा मतलब ये है, मेरे पास कुछ डेटा है अवेलेबल, उस डेटा का कुछ एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ बुरी चीजें होंगी, लेकिन एक जैसी होंगी। ठीक है, तो जिस डेटा का प्रॉपर्टी अदर डेटा से मैच करेगा उसको हम एक क्लस्टर में रख देंगे या एक सेक्शन में रख देंगे या फिर एक ग्रुप में रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे अगर आप हम रैंक्स की बात करते हैं आपके कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में, जब हम एजुकेशन सोसाइटी में, एजुकेशन एकेडमिक्स में बात करें, तो वहां पर हम रैंक्स की बात करते हैं या फिर हम एक रेंज ऑफ रैंक की बात करते हैं। फर्स्ट से 10 तक हम बोलेंगे कि फर्स्ट से 10 तक मतलब एक क्लास के लिए हम बात करें कि ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास में आता है, ये थर्ड क्लास में आता है। मैं सेक्शन कर रही हूँ हर चीज को। कैसे? मे बी स्टूडेंट की, मैं स्टूडेंट डेटा की बात कर रही हूँ यहाँ पर, जब मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स डेटा की बात कर रही हूँ। तो जैसे कि ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा है, तो ये रैंक ए में आ गया। ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो ये रैंक बी, क्लास बी में आ गया। ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सिंगिंग में अच्छे हैं, ये क्लास सी में आ गया, एंड सो ऑन। आप समझ रहे हैं? तो जब मैंने बोला कि ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे हैं, अब उसमें आर्ट्स भी आता है कि कुछ बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल में अच्छे हैं, लेट्स से, ठीक है, या कुछ बच्चे ड्रामेटिक्स में अच्छे हैं, तो वो मैंने एक क्लास में रख दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, कुछ हद तक सिमिलर हैं, इसलिए मैंने उनको एक क्लस्टर में पुट कर दिया है। सो इट इज नथिंग बट अ स्टैटिस्टिकल मेथड in research that allow researchers to bucket or group a set of objects into small and distinct clusters. So this is what cluster analysis is. अब ये cluster analysis बहुत चीजों में डिफरेंट होता है, वो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा डेटा किस तरह का है। I hope this particular thing, what cluster analysis is clear to all. Yes. Okay. So now, then what is the need of cluster analysis? What is the need of cluster analysis? Here we'll understand it. Suppose करिए मेरे पास एक कैफे है, ठीक है, आई हैव अ कैफे, और मैंने उस कैफे को 8 रीजन्स में खोला हुआ है, सेक्टर्स, 8 सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग तो चेक करना है कि मेरे कैपेचिनो की सेल्स और मेरी कोल्ड कॉफी की सेल्स कैसे हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है, अच्छा रीजन 1 में 1300 सेल्स हुई हैं कैपेचिनो की, ये पूरे 6 मंथ्स का एनालिसिस है, ठीक है। कोल्ड कॉफी की सेल 7000 हुई है, रीजन 2 में कैपेचिनो की सेल 1600 हुई है, कोल्ड कॉफी की सेल 1700 हुई है, एंड सो ऑन। मेरे पास एक टैबुलर फॉर्म में डेटा अवेलेबल है।
नाउ मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर नीड क्या है, तो उसको बहुत ध्यान से देखना सब लोग। ये मेरे पास एक टेबल अवेलेबल है, इसमें मैंने सारा डेटा अपना डाल दिया, कैपेचिनो की सेल्स और कॉफी कोल्ड कॉफी की सेल्स, 8 रीजन में मैंने इसे प्लॉट कर दिया। अब क्योंकि डेटा मेरे पास सिर्फ 8 रीजन का है और इसे मैं अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में ग्राफ की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना, तो मैं इसको इस फॉर्म में कर पाऊंगी रीजन, यस और नो? यस, मैं इसको इस फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब आप देखेंगे कि कॉफी की सेल्स, कैपेचिनो की सेल्स कहाँ आ रही है और आपकी कोल्ड कॉफी की सेल्स कहाँ आ रही है, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है मेरा क्लस्टर एनालिसिस। ये एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक ग्रुप ऑफ कॉफी सेल हो गया, ये एक ग्रुप कॉफी का सेल हो रहा है। तो यहाँ पर तो मुझे इजी है प्लॉट करना, क्यों? क्योंकि आई हैड ओनली 8 रीजन्स, सिर्फ 8 रीजन थे, इसलिए मुझे सबको प्लॉट करना बहुत आसान था। फॉर एग्जाम्पल अगर 8000 रीजन होते तो, समझ रहे हैं आप? तो मुझे यहाँ पर कितने, मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना, राइट? इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर आता है क्लस्टर एनालिसिस का यूज। इस चीज की वजह से कि अगर मेरे पास डेटा ज्यादा हो गया और उसे मुझे 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सो मेरे लिए आसान हो, सिंपल सिंपल। और यहाँ पर सिर्फ हम 2 फीचर्स की बात करें, 2 फीचर्स मतलब कोल्ड कॉफी सेल्स एंड कैपेचिनो। फॉर एग्जाम्पल अगर होता हेजलनट कॉफी, फॉर एग्जाम्पल होता वनीला फ्लेवर कॉफी, लेट्स से ऐसे अगर 4-5 फीचर्स होते हैं मेरे पास, सो उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इस फॉर्म में समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। बट इस फॉर्म में अंडरस्टैंड करना इजी होता, दैट इज वाई क्लस्टर इज रिक्वायर्ड टू बी एनालाइज्ड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। मैं जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि डेटा एनालिसिस का पार्ट है क्लस्टर एनालिसिस। ओके, सो डेटा एनालिसिस पहले मुझे पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है, वो मैंने आपको डेफिनेशन ऑलरेडी बता दी है। आप लोग पीएचडी स्कॉलर्स और यू माइट आल्सो आर अवेयर कि ये एक्चुअली है क्या। अब आता है बात टाइप्स ऑफ डेटा। अभी क्लस्टर एनालिसिस हम किस पे करते हैं? ठीक है, इमेजेस पे करते हैं, वीडियोस पे करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम अभी पेज 2 ही चल रहा है इसमें, प्रेजेंटेशन में चेंज नहीं हुआ है अभी। ओके, पेज 2 ही चल रहा है। यस मैम। अभी यस इज मैम, चेंज हो अभी गया। ओके, देन आई थिंक ये जो कंप्लीट स्लाइड शो पॉसिबल नहीं है, तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है? ओके। इतनी बात पेज 3 में मैं आपको जो बता रही थी, ये टेबल फॉर्म में मेरे पास क्लस्टर एनालिसिस गिवन था एक कैफे सेल्स का। तो यहाँ पर मैंने टेबल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर रखा है। ये है मेरे, इसको हम बोलते हैं फील्ड्स, ठीक है? इसको हम बोलते हैं फील्ड्स, या डेटा एनालिसिस की भाषा में, क्लस्टर एनालिसिस की भाषा में हम इसको बोलते हैं फीचर। ये फीचर 1 है, ये फीचर 2 है, और ये सारी रोज हैं, यानी कि ये यहाँ पर डेटा की तरह वर्क कर रहा है, राइट? और फिर मैं इसको क्या कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, क्लस्टर की फॉर्म में। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि क्लस्टर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 फीचर्स गिवन है मुझे, मेरे लिए प्लॉट करना आसान है टेबल फॉर्म में। बट व्हाट इफ अगर रीजन ज्यादा होते, ठीक है? व्हाट इफ फीचर्स ज्यादा होते, हेजलनट कॉफी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, वनीला फ्लेवर कॉफी, अगर ऐसा होता तो वहां पर हमें एनालिसिस की जरूरत पड़ती, स्पेशली क्लस्टर एनालिसिस। देन वी हैव टाइप्स ऑफ डेटा, देन वी हैव टाइप्स ऑफ डेटा। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, मैं ज्यूम कर रही हूँ, मैं बस एक ब्रीफ देना चाहती हूँ। टाइप्स ऑफ डेटा 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव डेटा और एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। अभी जो मैं आपको इमेजेस, वीडियोस ये सब बता रही थी, डेटा के जो कैटेगरीज है, वो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम टेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है? तो अगर आप देखें क्वालिटेटिव डेटा के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉमिनल डेटा और एक होता है ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल डेटा क्या होता है? जहां पर नेम स्पेसिफाइड कैटेगरीज होती हैं, नेम स्पेसिफाइड कैटेगरीज होती हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं जेंडर, तो जेंडर क्या हो सकता है? मेन, विमेन। मैं आपसे पूछूं हेयर कलर क्या हो सकता है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ग्रे, ये हेयर कलर हो सकता है। एथनिसिटी क्या हो सकती है? इंडियन, एशियन, ये आपकी एथनिसिटी हो सकती है। अच्छा, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं नॉमिनल डेटा। अगर मेरा डेटा इस फॉर्म
नेम की फॉर्म में, यानी कि मेन है, विमेन है, कैटेगरी फॉर्म में है, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल डेटा। नॉमिनल का मतलब होता है नॉम, नॉमिन का मतलब होता है, यहाँ पर आप जो पढ़ पा रहे हैं नॉमिन, इसका मतलब होता है नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेम स्पेसिफाइड फील्ड्स गिवन होंगी। फिर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव का सेकंड पार्ट विच इज ऑर्डिनल डेटा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरह का डेटा अवेलेबल है, यानी कि ऑर्डर क्या है डेटा का। ठीक है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मैं रैंक की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर है डेटा ऑर्डर। ग्रेड्स की बात कर रहे हैं, ए बी सी डी। इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर रहे हैं, लो, मीडियम। ठीक है, तो ये आता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर डेटा। ये नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, यस, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वांटिटी के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे मतलब नंबर्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्वालिटी होगी, यहाँ पर नंबर्स होंगे। डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा मतलब क्या है? एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ने साइकोलॉजी ऑप्ट की है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, 5.5 बच्चों ने साइकोलॉजी अटेम्प्ट नहीं कर सकते, 5 करेंगे या 6 करेंगे, तो ये हो गया डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस डेटा, फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, 5.3 हाइट हो सकती है, 6.1 हो सकती है। ठीक है, तो ये है कॉन्टिन्यूस। जो फर्दर डिवाइड हो सकता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, जिसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं जिन नंबर्स को, वो कॉन्टिन्यूस डेटा होता है। जिन नंबर्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते वो डिस्क्रीट डेटा होता है। अब बात आती है कि मैं आपको ये सब बता क्यों रही हूँ। टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास किस तरह का डेटा आ रहा है और उसमें क्या क्लस्टर एनालिसिस लगेगा। ऐसा हो सकता है कि मुझे क्लस्टर एनालिसिस की जरूरत ही ना पड़े, तो वो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरा डेटा किस तरह का है। तो डेटा मेरा किस तरह का होगा? अगर मेरा डेटा नंबर्स फॉर्म में है, मार्क माय वर्ड्स, अगर मेरा डेटा नंबर्स फॉर्म में है तो तब हम यूज करेंगे क्लस्टर एनालिसिस। ठीक है, यानी कि क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम नहीं करेंगे, नॉमिनल डेटा के लिए हम अवॉइड करेंगे, बट हाँ ऑर्डिनल डेटा के लिए वी कैन सर्टेनली चूज दैट। हम लोग चूज कर सकते हैं कि ऑर्डिनल डेटा में हम लोग क्लस्टर एनालिसिस चूज कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि करना ही करना है। सो दिस इज वाई ये नीड ऑफ क्लस्टर्स में आता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? इतनी बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. राइट, नाउ यू हैव व्हाट आर द कॉमन एप्लीकेशंस। आपने पढ़ लिया कि क्या होता है क्लस्टर एनालिसिस, किसका पार्ट है क्लस्टर एनालिसिस, किस तरह के डेटा में मुझे क्लस्टर एनालिसिस यूज करना चाहिए, ये भी समझ में आ गया आपको। क्लस्टर एनालिसिस, अगर मैं आपको बताऊं कि इस एप्लीकेशन पे आने से पहले मुझे आपको ये एक्चुअली बताना पड़ेगा कि क्लस्टर एनालिसिस हर फील्ड में यूज किया जाता है। चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड ले लीजिए, चाहे आप उसे मार्केटिंग फील्ड ले लीजिए, चाहे आप कॉमर्स फाइनेंस की फील्ड ले लीजिए, आप बात कर लीजिए जीपीएस की, आप जो अपने फ़ोन में जीपीएस यूज़ करते हैं, आप उसकी बात कर लीजिए। आप अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आप फ़ेसबुक यूज़ करते हैं। वहाँ पर इमेजेस कैसे आपको इमेजेस आपको कैसे क्लासिफ़ाई होकर आती हैं, आप उसकी बात कर लीजिए। आप अगर नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप अमेज़न यूज़ करते हैं, आप अमेज़न प्राइम यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपको किस तरह से रिकमेंड हो रही हैं मूवीज़, ठीक है? आप उसकी बात कर लीजिए। टेलीकम्युनिकेशन में आप बात कर लीजिए। इन सब चीज़ों में क्लस्टर एनालिसिस यूज़ होता है। ऐसी मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे ऐसी कोई फ़ील्ड है, जहाँ पर क्लस्टर एनालिसिस यूज़ नहीं होता। अब तो चैट जीपीटी आ गया है, यहाँ पर भी क्लस्टर एनालिसिस का बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये क्लस्टर एनालिसिस। अब बात आती है कॉमन एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर लिखी है डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या है? आज आप लोग, अगर आप सब यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि डेटा साइंस, मार्केटिंग, आजकल आपको कोई भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को भी कि आपको ये डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। ना पीपल से, आज के टाइम पे लोग बोलते हैं इफ़ यू नो दिस स्किल, आपको अगर ये आता है, आपके पास डिग्री हो ना हो कोई बात नहीं, बट इफ़ यू नो दिस स्किल, आपको प्रोबेबली जॉब मिल जाएगी। ये है ना? सो ये क्या चीज है? यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं कि आपको कोई चीज की नॉलेज होनी चाहिए, उसको यूज कैसे करते हैं आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको
डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये है आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर भी क्लस्टर एनालिसिस का यूज़ आता है कि कौन से लोग इस तरह की इमेजेस को फॉलो कर रहे हैं। उन्हीं के पास ये जाके आपको विज़िबल होगा कि अच्छा, ये टॉपिक मैंने सर्च किया था इसीलिए आया। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पे अगर आप कोई कीवर्ड से कुछ भी सर्च करते हैं, लेट्स से मैं सर्च करती हूँ टी-शर्ट्स इन दिल्ली एनसीआर फॉर एग्ज़ाम्पल। आई वांट टू बाय टी-शर्ट फॉर दिल्ली एनसीआर। अब ये बहुत स्पेसिफाइड सर्च है। ये बहुत स्पेसिफाइड कीवर्ड है जिसको मैं सर्च कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूँ टी-शर्ट, ठीक है? ये स्पेसिफाइड नहीं है। ये क्या करेगा, अब मुझे गूगल क्या रिज़ल्ट करेगा? गूगल मुझे हर एक तरह की, वो यूके से भी लेकर आ सकता है टी-शर्ट, या फिर वो विकिपीडिया उठा सकता है क्योंकि मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, है ना? लेकिन अगर मैं तो ये एक तरह का क्लस्टर है। ओके, मैंने लिखा टी-शर्ट्स, तो टी-शर्ट कीवर्ड एक पूरा क्लस्टर उठा के दे देगा मुझे जहाँ पर ये वर्ड होगा, राइट? देन अगर मैं इसको और स्पेसिफाई कर दूँ, प्रिसाइज़ कर दूँ, लेट्स से जैसे टी-शर्ट्स इन इंडिया स्पेसिफाई कर दिया। फिर मैं कर दूँ कॉटन टी-शर्ट्स इन इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये अलग-अलग तरह से क्लस्टर्स मुझे शो होंगे एज़ अ रिजल्ट। तो ये बेसिक एक एप्लीकेशन है क्लस्टर एनालिसिस की। अब ये यूज़ कैसे होती है डेटा साइंस में? डेटा साइंस एक बहुत बड़ा बकेट है। उस बकेट में हम क्या पढ़ रहे हैं? डेटा को एनालाइज करना। साइंस मतलब क्या है? समथिंग विच हैज देयर, कोई चीज जो कि मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है, उस चीज को पढ़ना, समझना, उसका आउटकम निकालना। आउटकम मतलब रिजल्ट निकालना। डेटा साइंस ये होता है। अब डेटा साइंस के अंदर आता है डेटा एनालिसिस का पार्ट। तो डेटा साइंस एक बहुत बड़ा बकेट हो गया। उस बकेट के अंदर एक छोटा सा पार्ट है क्या? डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के अंदर छोटा सा पार्ट है क्या? क्लस्टर एनालिसिस। ठीक है? क्लस्टर एनालिसिस हमारा मार्केटिंग में भी यूज होता है। मार्केटिंग में कैसे हो सकता है यूज? फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक कंपनी है, मुझे उस कंपनी के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। मुझे उस कंपनी में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब कोई भी ऐसे चलते फिरते तो कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले पता होना चाहिए कि अगर मैं वो प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी तो क्या उसको लोग खरीदेंगे। यानी कि मुझे उसको वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा, वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। उसकी कुछ उसका कुछ मूल्य होना चाहिए ताकि वो लोग उसको, कस्टमर उसको यूज करे, है ना? तो यहाँ पर आता है मार्केटिंग। अब बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ बिजनेस ओनर, मैं इसको कैसे एनालाइज करूंगी कि जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ वो किस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ऑडियंस तक जाना चाहिए, है ना? सेगमेंट ऑफ ऑडियंस का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ पीपल। एक किस टारगेट का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस। मेरे प्रोडक्ट के लिए टारगेट ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए? तो यहाँ पर टारगेट ऑडियंस को एनालाइज करने के लिए आई नीड क्लस्टर एनालिसिस एंड मार्केटिंग। ओके, मैं मार्केटिंग कर दूं। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात करती हूँ, मैं आईफोन का ब्रांड फ्रेंचाइजी ले रही हूँ, ठीक है? अब आप सोचिए कि मैं किसी आईफोन की जो ब्रांड होगा वो मैं एक अर्बन एरिया में खोलूंगी या फिर एक रूरल एरिया में। आप खुद सोच के बोलिए कि मैं एक ऐसी जगह नहीं खोलूंगी जहां पर आईफोन की यूसेज ही नहीं हो। यूसेज मतलब लोग उसको खरीदे ही ना। अब अगर मैं गाँव में या किसी कुछ पीछे इलाकों में खोल दूँगी अपना ब्रांड या अपना शोरूम, तो वो नहीं चलेगा, राइट? तो यहाँ पर मार्केटिंग आती है कि मुझे किस पर्टिकुलर लोगों के लिए उस चीज़ को मार्केटाइज़ करना है ताकि मेरा प्रोडक्ट बिके। तो ये मार्केटिंग का क्लस्टर एनालिसिस मार्केटिंग का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब यूज़ है। फाइनेंस में भी हम क्लस्टर एनालिसिस बहुत यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, आपने चीज़ें नोटिस की होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों के पास कॉल्स आते हैं कि क्रेडिट कार्ड के लिए कि आप हमारे डायमंड कस्टमर हैं या आप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, हम आपको ये देना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो प्रीमियम कार्ड देना चाहते हैं जहाँ पर आप
एयरपोर्ट में जाएंगे तो आपको ये फैसिलिटीज आप उस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। आप अगर क्रेडिट कार्ड का यूज इस बिल्डिंग सेक्शन में करेंगे, बिग बाजार में जाके करेंगे या रिलायंस स्मार्ट में जाके करेंगे तो आपको ये फायदे मिलेंगे। आपको कैसे पता चलता है कि वो आपको कॉल कर रहे हैं या आपके लिए ये स्कीम निकाली है? कैसे उनको कैसे पता कि आपको टारगेट करना है? वो आपका परचेज बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, वो परचेज बिहेवियर आप ही एज अ कस्टमर, आप इंडिविजुअली अपना ये डेटा है आप कंपनीज को देते हो। ठीक है, तो वो आपका डेटा इकट्ठा करते हैं, क्लस्टर एनालिसिस की हेल्प से उसे एनालाइज करते हैं एंड देन दे गिव यू फर्दर बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। सो फाइनेंस में भी जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, इसमें आप यूज करते हैं क्लस्टर एनालिसिस का। जियोलॉजी जैसे मैंने बताया, जीपीएस, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपका क्लस्टर एनालिसिस का। देन वी हैव सोशल नेटवर्क एनालिसिस। सोशल नेटवर्क एनालिसिस कैसे हो गया? मेरा कोई कैंपेन फेसबुक पे या फेसबुक पे चल रहा है, मेरा कोई कैंपेन इंस्टाग्राम पे चल रहा है, मैंने कोई एड रन करी है अपनी, तो वो भी मैं किस टारगेट ऑडियंस को रिप्रेजेंट करूंगी, मेरी वो एड किसी टारगेट ऑडियंस को दिखे, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? क्लस्टर एनालिसिस। देन वी हैव इमेज सेगमेंटेशन। इमेज सेगमेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास ये सिस्टम है, सिस्टम मतलब मेरा लैपटॉप है। इसमें मुझे मैंने फॉर एग्जांपल फेसबुक ओपन किया, इंस्टाग्राम ओपन किया। आप देखते होंगे कि वहाँ पर आपने अगर अपनी 1-2 बार फ़ोटोज़ डाली हैं, 3-4 बार फ़ोटोज़ डाली हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसके बाद आप उनको टैग करते हैं। टैग करके आप मशीन को ये बता रहे हैं, ठीक है? मशीन मतलब जो सॉफ्टवेयर पीछे रन हो रहा है, फेसबुक का जो एल्गोरिदम ल रन हो रही है, मैं वहाँ पर उसको सिस्टम बोल रही हूँ। तो वो जो एल्गोरिदम ल रन हो रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पर वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ओके, ये पर्टिकुलर जो बंदा है ये ए नाम का है, ये पर्टिकुलर जो इमेज है क्योंकि आपने उसको ऐसे टैग किया है तो वो बी नाम का है। तो वहां पर जो एल्गोरिदम रन हो रही है वो इमेज को सेगमेंट कर रही है, राइट? एंड देन वो आपको, जब आप दोबारा से वो फोटो डालते हो, कई बार वो आपको दिखता है कि इज दिस फॉर हिम। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ मेनी, आप, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने, कितने लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी, मिंत्रा पर, अमेज़न पर, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और आपने उसको टैग कर दिया कि मैं ये इस इंसान के लिए खरीद रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ नॉर्मल शॉपिंग करेंगे ना, तो वो आपको बताएगा कि अच्छा, ये आपने खरीदा था, उनको ये साइज़ आया, अब इस साइज़ के बाद अगर आप, ये साइज़ अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो जिस पर्सन के लिए आपने खरीदा था, वो साइज़ अवेलेबल नहीं है और आपको नहीं आएगा। तो आप देखिए, सिस्टम ही आपके लिए कितना काम कर देता है। हाउ? बिकॉज़ ऑफ क्लस्टर एनालिसिस। ठीक है? देन यू हैव कोलैबोरेटिव फिल्टर्स। कोलैबोरेटिव फिल्टर्स का मतलब है जैसे हम रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे हम नेटफ्लिक्स यूज करते हैं। आपने एक कॉमेडी जॉनर की एक फिल्म देख ली, आपने एक थ्रिलर कोई मूवी देख ली, या आपने कोई कोई रोमांटिक मूवी देख ली। अब आपने फॉर एग्जांपल 3 मूवीज देख ली कॉमेडी की, तो अब नेटफ्लिक्स ने एक पैटर्न याद कर लिया कि अच्छा, इन्होंने ये मूवी देखी है, कौन सी? कॉमेडी। तो जब आप नेक्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स खोलेंगे तो आपको वो रिकमेंड करेगा कि आपने ये मूवीज देखी हैं, शायद आपको ये वाली मूवी भी अच्छी लगे। और वो किस तरह का पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आप कॉमेडी मूवी देख रहे हो। तो यहाँ पर आता है, वो फिल्टर कर रहा है कि मेरा मूवी देखने का पैटर्न क्या है। तो इसको हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। देन वी हैव एजुकेशन एंड देन वी हैव टेलीकम्युनिकेशन। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्लस्टर एनालिसिस के। आई होप ये पर्टिकुलर स्लाइड क्लियर है आप लोगों को। डेफिनेटली। यस मैम। अ, आगे जाने से पहले, इनकी मेथडोलॉजी होने से पहले, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं। क्लस्टर एनालिसिस एक सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक नहीं है। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्लस्टर एनालिसिस एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का तरीका है, टेक्निक है। अनसुपरवाइज का मतलब क्या होता है? अभी जैसे मैं आपको क्लस्टर एनालिसिस के बारे में बता रही हूँ, तो ये एक सुपरवाइज तरीका है। सुपरवाइज कैसे? मैंने आपको टॉपिक दे दिया कि अच्छा, ये क्लस्टर एनालिसिस है, मैं आपको ऐसे ऐसे करके पढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप पढ़ तो रहे हैं क्लस्टर एनालिसिस, लेकिन मेरी सुपरविजन के अंडर में।
मेरी सुपरविजन में आप पढ़ रहे हैं, देयरफॉर देयर इज अ गाइड एग्जिस्टिंग, कि अच्छा कोई गाइड है आपको डायरेक्शन देने के लिए कि ऐसे ऐसे क्लस्टर एनालिसिस को पढ़ना है। एक तरीका तो हो गया ये गाइड वाला, जहां पर गाइड प्रेजेंट है, जहां पर आपको डायरेक्शन दी जा रही है, दिस इज व्हाट क्लस्टर एनालिसिस इज। नेक्स्ट कम इज दी अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज मतलब यहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं जाती, यहाँ पर आपको बस कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, आप खुद पढ़िए। अभी क्वेश्चन एनालिसिस मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज सुपरविजन। एक चीज हो गई जो आपको बस डेटा दे दिया कि दिस इज द थिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिलेबस दे दिया और बुक दे दी पढ़ने के लिए, आप पढ़ लो अपने आप, दिस इज अनसुपरवाइज। तो क्लस्टर एनालिसिस अनसुपरवाइज में आता है, ठीक है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है चीज आपको पता होना चाहिए कि डेटा एनालिसिस का पार्ट तो है, लेकिन किस डेटा के लिए काम करता है, जो डेटा अनसुपरवाइज्ड है। अब मैं आपको एक बेसिक्स का एग्जांपल देती हूँ अनसुपरवाइज का। फॉर एग्जांपल मुझे मेरे पास एक डेटा गिवन है। किस तरह का डेटा गिवन है? इमेज की फॉर्म में डेटा है। अब वो इस इमेज किस तरह की है? उस इमेज में डेटा इस तरह का है कि कुछ फीचर्स मेरे पास इस तरह के गिवन है। अ, एक फीचर है आईज, एक फीचर है नोज, एक फीचर है लेग्स, नंबर ऑफ लेग्स, एक फीचर है नंबर ऑफ फर, एक फीचर है साइज ऑफ ईयर। यानी कि मैं एक एनिमल की बात कर रही हूँ, उस एनिमल का उसके फीचर्स हैं कि उसकी उस एनिमल की लेग्स कितनी है, उस एनिमल का आईज कैसी हैं, उस एनिमल के ईयर्स कैसे हैं, यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, ठीक है। उस एनिमल का साइज ऑफ ईयर क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ लेग्स क्या है, 4 है, 3 है, 2 है, समझ रहे हैं आप। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी मशीन को इमेज दी, इनपुट दिया इमेज की फॉर्म में, और वो इमेज जो है वो कैट की है, बिल्ली की इमेजेस है। अब मैंने इस पीछे एल्गोरिदम लगा दी कि अच्छा अगर इस तरह का इनपुट, कैट का इस तरह का इमेज का इनपुट मैं आपको दूंगी, तो लर्न हो जाना चाहिए या प्रिडिक्ट हो जाना चाहिए कि ये कैट है, ठीक है। एक छोटे से बच्चा, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे नहीं पता होता कि चीजें क्या है, हमें सिखानी पड़ती हैं, ठीक है। कि अच्छा ये कैट है, ये डॉग है, ये बस है, ये ट्रक है, और आप एक बार बता के शांत हो जाते हैं? नहीं, एक बार में वो नहीं समझता, आपको रिपीट करना पड़ता है। सेम चीज होती है डेटा के साथ। जब मेरे पास डेटा आता है और मैं उसको मशीन में फीड करा रही हूँ, डेटा एज अ इनपुट मैं उसे दे रही हूँ, तो उस डेटा को एनालाइज करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? बार बार उसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना, मैं उसको फील्ड्स बतानी पड़ेंगी कि अच्छा ये इमेज, अगर इस तरह का एक इमेज का दो चार लेग्स हैं, अ, दो आंखें हैं, एक छोटी सी नाक है, दो कान है जो कि थोड़े से वी शेप में है और हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है, एक छोटी सी टेल है, तो इमेज समझ जाए, तो मेरा सिस्टम समझ जाएगा कि ठीक है ये इमेज कैट की है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर चीज है, जिस तरह से हम लर्निंग करा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड। जब मैंने मशीन को बता दिया कि दिस काइंड ऑफ थिंग इज नथिंग बट कैट। अब एक चीज ऐसी, तो ये तो हो गया सुपरविजन। अब एक चीज ऐसी भी हो सकती है कि वहां जहां पर हमने सिर्फ ये फीचर्स दिए, फीचर्स मतलब नंबर ऑफ लेग्स कितनी है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइज ऑफ ईयर क्या है, नंबर ऑफ टेल कितनी है, साइज ऑफ टेल क्या है, ठीक है। तो ये जब मैं ये फीचर्स दूंगी, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि ये कैट है या डॉग है, अब बार बार वो उसको खुद लर्न करेगा, एल्गोरिदम रन करेगी और खुद से लर्न करेगा। यहाँ पर जो एनालिसिस होता है वो हम क्लस्टर की बात करते हैं, यहाँ पर क्लस्टर एनालिसिस काम आता है, ठीक है। नाउ क्लस्टर एनालिसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड क्लस्टरिंग और एक होता है सॉफ्ट क्लस्टरिंग। हार्ड क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि मेरे पास एक डेटा है, वो डेटा एक क्लस्टर में जाएगा ही जाएगा, दैट इज हार्ड क्लस्टरिंग। अ गिवन डेटा पॉइंट बिलोंग्स टू ओनली वन क्लस्टर, एक से ज्यादा क्लस्टर में नहीं बिलोंग करेगा। सॉफ्ट क्लस्टरिंग मतलब एक से ज्यादा क्लस्टर में भी एक डेटा जा सकता है, एक डेटा पॉइंट मेरा एक से ज्यादा क्लस्टर में भी जा सकता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज दोनों पे मैच करके तो हमको कहेंगे वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट एनालिसिस है, सॉफ्ट क्लस्टरिंग है। ये दो टाइप्स हो गए क्लस्टरिंग के। देन वी हैव मेथोडोलॉजी फॉर क्लस्टर एनालिसिस। बेसिकली 6 तरह की मेथोडोलॉजी है कि हम क्लस्टर एनालिसिस परफॉर्म कैसे करते हैं, क्या मेथड्स होते हैं क्लस्टर एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। पहले हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा प्रिपरेशन?
डेटा प्रिपरेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि मेरे पास डेटा आया, डेटा मेरा सीएसवी फाइल में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। मेरे पास कोई डेटा आया, अब उसको प्रिपेयर करना, रिडंडेंसी रिमूव करना। रिडंडेंसी रिमूव करने का रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। एक ही डेटा को 4 बार 4 तरीके से मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट के डेटा में क्या होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, रोल नंबर होगा, एड्रेस होगा, वो उसने क्या ऑप्ट किया हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सोशियोलॉजी ले रखा है या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स है या आर्ट से है या साइंस साइड से है, तो उसका पूरा डेटा मेरे पास प्रेजेंट होगा। अब ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल राज नाम का एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है। अब ऐसा पॉसिबल है ना कि डुप्लीकेसी अवेलेबल है। फर्स्ट रोल नंबर राज का है, अब ये राज 5-6 बार रिपीट हो रखा है एक ही राज, तो ये डुप्लीकेसी रिमूव करना, ये भी डेटा प्रिपरेशन के अंडर आता है। मिसिंग वैल्यूज, कोई बाय मिस्टेक कोई वैल्यू मिस हो गई है, तो अगर वो मिस हो गई है तो या तो मैं उसको मीन से या फिर मोड से, है ना, सेंट्रल टेंडेंसी से रिमूव कर दूं, सॉरी ऐड ऑन कर दूं, या मैं मिसिंग वैल्यूज को प्रॉपरली रिमूव कर दूं। ये हमारा किसके अंदर आता है, डेटा प्रिपरेशन के अंदर। देन फीचर सिलेक्शन। आई होप अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि फीचर क्या होता है। फीचर्स, जैसे मैंने बताया था इमेज कैट की, जब हम इमेज की बात कर रहे थे तो बताया नंबर ऑफ लेग्स, साइज ऑफ ईयर्स, तो ये सारे फीचर्स में होते हैं। अब ऐसे 50 और 60 फीचर्स हो तो कैसे काम करेंगे, नहीं, कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मेरे पास 60 फीचर्स है तो मैं 60 के ऊपर काम नहीं करूंगी, मैं कुछ 3 4 5 के ऊपर काम करूंगी या 10 के ऊपर काम करूंगी। तो मुझे देखना पड़ेगा उस 60 फीचर्स में से इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं। तो फीचर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी में। देन यू हैव, आपको कौन सी एल्गोरिदम यूज करनी है, अभी हम एल्गोरिदम के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। फिर कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसपे मैं काम करूंगी। देन यू हैव, अब मेरे पास क्लस्टर, नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होने चाहिए जिसपे मैं उन वैल्यूज को ऐड ऑन करूंगी। देन यू हैव इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। जब आपका ये सारा काम हो जाएगा, प्रिपेयर हो गया डेटा, सिलेक्शन कर लिया आपने फीचर का, आपने एक एल्गोरिदम लगा दी कि मेरी एल्गोरिदम इस पैरामीटर पे काम करेगी, और आपने क्लस्टर्स भी बता दिए कि इतने क्लस्टर्स में मेरा डेटा डिवाइड होना चाहिए। तब आपको मिलता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट मिलते हैं, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आपके पास रिजल्ट्स आ गए, नाउ यू आर इंटरप्रिटिंग दो, आप उस रिजल्ट को समझा रहे हो दूसरे लोगों को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें लास्ट वाली लाइन का मतलब बता दूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे बॉस ने मुझे बोला कि उस कैफे की जो मैं बात कर रही थी, कॉफी कैफे का, उसमें आप मुझे बताइए कि सेल्स कॉफी कैपेचिनो कॉफी की अच्छी है या फिर वनीला कॉफी की, या जो दूसरी कॉफी है उस कोल्ड कॉफी की अच्छी है। अब मेरे जो बॉस को टेबल से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ देखना है कि मुझे ये बताना है कि मेरा क्लस्टर कौन सा बड़ा है, कोल्ड कॉफी वाला क्लस्टर बड़ा है या फिर जो दूसरा क्लस्टर है वो बड़ा है। जो भी क्लस्टर साइज में बड़ा होगा, मेरा बॉस समझ जाएगा कि अच्छा ये वाली कॉफी ज्यादा बिकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बॉस को ये दे दूं, ये वाला चार्ट दे दूं अपने बॉस को कि सर ये है हमारा एनालिसिस, हमने ये किया है, तो मेरे बॉस को कुछ समझ में नहीं आया, वो कहेगा मैं क्या करूँ इस डेटा का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं उसको इस फॉर्म में डेटा दूं तो वो समझ जाएगा, अच्छा कैपेचिनो, ओके कोल्ड कॉफी, तो कोल्ड कॉफी की सेल्स कम है और अच्छा कैपेचिनो की सेल्स ज्यादा है। आप देख रहे हैं, इस तरह से हम एनालिसिस करके हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स, कि हम अपने रिजल्ट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ग्राफिकल फॉर्म में हो, डेमोग्राफिक्स की फॉर्म में हो, वो ज्यादा अच्छा है। अब बात आती है क्लस्टर एनालिसिस की एल्गोरिदम की। तो हमारे पास ये कुछ 6-7 एल्गोरिदम्स है, वैसे तो बहुत सारी हैं। अभी फिलहाल हम इन 3 एल्गोरिदम्स पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बस ब्रीफ दूंगी, बाकी की एल्गोरिदम्स जरूरत नहीं है, मैं इसका आपको ब्रीफ दे दूंगी फिर भी। पार्टीशन बेस्ड एल्गोरिदम, देन यू हैव हायरार्किकल, देन यू हैव डेंसिटी, ग्रिड बेस्ड, मॉडल बेस्ड, कंस्ट्रेंट बेस्ड एंड आउटलायर बेस्ड। पार्टीशन बेस्ड एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, ये क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स की ये एल्गोरिदम्स है, सारे मेथड्स हैं क्लस्टरिंग के। पार्टिशनिंग एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, आपके पास एक डेटा सेट है, आपने उसे ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है, और आपने उसको डिवाइड कर दिया डेटा को, किस फॉर्म में, क्लस्टर्स की फॉर्म में। कितने क्लस्टर्स की फॉर्म में, के क्लस्टर्स की फॉर्म में। के कोई भी एक अल्फाबेट है।
यहाँ मैंने लिखा है कंस्ट्रक्ट वेरियस पार्टीशंस एंड देन इवैल्यूएट देम बाय सम क्राइटेरिया। ठीक है, आप पार्टीशंस बना रहे हो, आप कैसे पार्टीशन करोगे वो आप पे डिपेंड करता है, वो यूजर पे, जो भी प्रैक्टिशनर है उस पर डिपेंड करेगा कि मुझे कितने क्लस्टर्स लेने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, पार्टिशनिंग बेस्ड एल्गोरिथम क्या है, मेरे पास कुछ डेटा है, उस डेटा में दो फीचर्स गिवन है, एक है फीचर 2 और ये है फीचर 1। ये मैंने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरे पास ये डेटा था, तो जो सेम सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक जगह आ गए, सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक जगह आ गए। अब आप देख रहे हैं, ये जो पार्टीशन है इसे हम बोलते हैं पार्टीशन बेस्ड एल्गोरिथम। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा एक ही डेटा था, कि मेरा एक ही डेटा था, एक डेटा पॉइंट नहीं, ग्रुप ऑफ डेटा, ये मेरे पास डेटा था। उस डेटा को मैंने उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग में सेगमेंट कर दिया, सेगमेंट मतलब ग्रुप कर दिया। तो मैंने इसको कितने ग्रुप्स में किया, 3 ग्रुप्स में किया। क्यों? क्योंकि मुझे 3 फीचर्स दिखे होंगे उसके। ठीक है, तो ये होता है हमारा पार्टीशन बेस्ड एल्गोरिथम। देन यू हैव हायरार्किकल बेस्ड एल्गोरिथम। हायरार्किकल बेस्ड क्या होता है, एक ट्री की फॉर्म में क्लस्टर गिवन होता है। ठीक है, ट्री की फॉर्म में, जैसे आप यहाँ देखिए यहाँ पर जैसे मैं को बोल रही थी, मेरे पास ये इमेज है, ईगल है, पिकॉक है, एनिमल्स हैं, यूनिक यूनिक एनिमल्स दे रखे हैं सारे। तो ईगल और पिकॉक, लायन और बियर, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। देखिए मैंने इसको किस, ये मेरे पास सारे एनिमल्स गिवन है, यूनिक एनिमल्स गिवन है। फिर मैंने देखा, अच्छा इसके फेदर्स हैं, पंख हैं, इस इमेज में भी पंख हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, एक ग्रुप में सेगमेंट कर दिया कि ओके ये बर्ड हो सकता है। देन यू हैव लायन एंड बियर, दोनों के 4-4 लेग्स हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करके ये क्या बन गया, ये एक तरह का मैमल बन गया। ये मैमल कैटेगरी में चला गया, एक क्लस्टर आ गया मैमल का क्लस्टर। देन फिर देखा, अच्छा स्कॉर्पियन है, फिर क्या है, स्पाइडर है, मोर देन 3 लेग्स अवेलेबल हैं इसके, तो ये एक कैटेगरी बन गई, मोर देन 3 लेग्स। फिर देखा, अच्छा ये बर्ड है, ये मैमल है, ये वर्टिब्रेट आ गया, तो ये वर्टिब्रेट एक क्लस्टर हो गया। और ये पूरा बन के आपको क्या बना रहा है, ये एनिमल बना रहा है एक। क्या अच्छा आप रेक्टिफाई कर सकते हो, रेक्टिफाई मतलब आप समझ सकते हो कि ये क्या है, ये एनिमल है। तो जैसे हम, आप समझिए कि जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखिए एक ट्री बन रही है, एक हायरार्की बन रही है। ठीक है, एक हायरार्की बन रही है, इसको हम बोलते हैं एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग। इसको हम बोलते हैं एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग, जो कि बॉटम अप अप्रोच होती है। और इसका ऑपोजिट होगा कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एनिमल, फिर हम एनिमल को सब कैटेगराइज कर देंगे वर्टिब्रेट और मोर देन 3 लेग्स में। फिर वर्टिब्रेट को हम अदर और क्लासिफाई करेंगे बर्ड्स और मैमल्स में। और फिर बर्ड्स देखेंगे, अच्छा 2 तरह की बर्ड्स अवेलेबल हैं। तो जो बॉटम अप अप्रोच होगी उसको हम कहते हैं एग्लोमरेटिव। और ये ऊपर से नीचे वाले जो होते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच को हम कहते हैं डिविसिव। ठीक है, ये हायरार्किकल का पार्ट होता है। डिविसिव अप्रोच क्या होती है, ऑल द डेटा पॉइंट स्टार्ट्स इन वन क्लस्टर एंड स्प्लिट्स आर परफॉर्म रिकर्सिवली एज वन मूव्स डाउन द हायरार्की। ठीक है, तो ये होती है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। देन यू हैव डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग में क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, पार्टीशन में आपने क्या किया था, आपको आपने एक लाइन खींची और इन दोनों को सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। आपने एक पार्टीशन किया, आपने इन दोनों को सेग्रीगेट कर दिया। आपने एक पार्टीशन किया, इन दोनों को सेग्रीगेट कर दिया। तो आपने के क्लस्टर्स निकाले, 1 2 3। तो के क्या हो गया यहाँ पर, 3 हो गया। ठीक है, अब डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी में हम एक मीन ले लेते हैं। ठीक है, एक हमने एक मीन ले लिया, उस मीन के रिस्पेक्ट में मुझे हर चीज को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे कि डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग जो होती है, ये एक आर्बिट्री शेप्ड क्लस्टर प्रोवाइड करती है, एक आर्बिट्ररी शेप्ड क्लस्टर। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जितने भी अर्बन एरियाज में जो वाटर सप्लाई होती है, जो पानी की जो सप्लाई होती है, जो अर्बन इलाकों में जो दी जाती है, उसका जो नेटवर्क मेरे पास, मैंने तो वो पाइप बिछा दिया हर जगह। अब कहीं पे लीकेज हो गई, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर लीकेज है और यहाँ पर प्रॉब्लम है, वहां तक पानी नहीं जा रहा। मुझे कोई आके बताएगा कि यहाँ यहाँ पे पानी की समस्या है। अब पानी की समस्या आई क्यों है, कहीं तो पाइप का ब्लॉकेज हुआ होगा। अब इतने बड़े नेटवर्क में ढूंढना,
कि किस पाइप में किस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है, फिर उसको ठीक करना एक बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ पर डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग में काम में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग काम में आ रही है। देन यू हैव ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग, देन यू हैव मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग। ये आज हम कवर नहीं करेंगे सिंस ग्रिड इसमें बहुत मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं। जहाँ तक आपको टाइप्स की बात करनी है वहाँ पर आपको ये 3 टाइप बहुत सफिशिएंट है, हो जाते हैं यहाँ तक। आई होप किसी को अभी तक डाउट नहीं आया है यहाँ पर। Am I clear? Yes, ma'am. Okay. Yes. So if you are interested, I will take you to the, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इस पर्टिकुलर चीज को आर प्रोग्रामिंग में करा सकती हूँ इफ वी हैव टाइम। Yes, ma'am, we have time. वी हैव Okay. तो पहले तो मुझे आर स्टूडियोज ओपन करना पड़ेगा। सो दिस इज आर स्टूडियो। यहाँ पर हम बेसिकली जो है कोड करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं जब मुझे क्लस्टर एनालिसिस परफॉर्म करना होता है, ठीक है। ये है आर स्टूडियो, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसे सिंपल गूगल पे जाके। मेरी स्क्रीन विजिबल है, ये आर स्टूडियो आपको दिख रहा है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ठीक है। आप मैं ज्यूम कर रही हूँ कि अभी आपको बेसिक भी नहीं आता होगा आर का। अगर बेसिक आता है तो आप मुझे बताइए, फिर मैं आगे जाऊंगी, या मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँ? No, ma'am, we know that. यू नो मैम दैट। बेसिक से स्टार्ट कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ बेसिक से। सो यहाँ पर अगर मैं एक यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल दे रही हूँ x, इस x को मैं इस x में मैं एक नंबर असाइन करना चाहती हूँ विच इज 3, ठीक है। तो ये मैं कंसोल पे ही लिखूंगी। यहाँ आप देखिए ये कंसोल है, ठीक है। आई एम क्लिकिंग इट। आप यहाँ देखिए आई गॉट द रिजल्ट ओवर हियर। मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिल गया है कि मेरा जो वैल्यू है x का वो 3 है। इस x को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अभी मैंने असाइन कर दिया x की x जो वेरिएबल है उसमें 5 वैल्यू स्टोर हो जाए। तो अब आप यहाँ देखिए x की वैल्यू में 5 स्टोर हो चुका है मेरा, राइट। नाउ आपके पास दोनों तरीके होते हैं, इक्वल्स टू और इस तरह से देने का। अब आप देखिए पहले मेरा जो वैल्यू थी 3 थी, अब वो वैल्यू 5 हो गई। इट मीन्स आर अलाउ करता है ओवर राइटिंग करने के लिए, ठीक है। आर में मैं ओवर राइटिंग कर सकती हूँ। देन यू हैव, अगर मुझे कहीं पे क्लस्टर बनाना है, या क्लस्टर से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुझे यहाँ पर स्टोर करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट हेलो।
तो ये अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करूंगी तो ये स्टोर होगा नहीं, क्योंकि मैंने इसने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं किया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, तो यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है हेलो। अगर मैं यहाँ पर एक्स प्रिंट करूं, तो यहाँ पर ये एक्स प्रिंट कर रहा है, जो कि मैंने ओवरराइट किया था। पहले x3 था, अब मैंने इसको ओवरराइट किया था इसमें। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हाउ यू डू, कैसे आप वैल्यूज असाइन करते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि मुझे इसकी क्लास चाहिए, कि मैं लिखूं क्लास। ओके, जस्ट अ मिनट, मेरा सिस्टम हैंग हो गया, 2 मिनट टाइम दीजिए मुझे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल नंबर ले लिया मैंने 10, देन आई हैव टेकन अनदर नंबर 1, नंबर 2, इसमें मैंने ले लिया 7 या 6, एंड आई एम डूइंग num प्लस num2। व्हाट डू यू थिंक आई विल गेट? आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए एज अ आंसर? क्या डिस्प्ले होना चाहिए? 16. 16। ये मुझे यहाँ डिस्प्ले क्यों हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ डिस्प्ले? ये मुझे कंसोल पे ही डिस्प्ले हुआ, ये मुझे यहाँ क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ? क्योंकि मैंने इसको कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया। वैल्यूज वेरिएबल्स के लिए ही जाएंगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख देती, y इक्वल्स टू, अब आप देखिए y इक्वल्स टू 16 हो गया। ठीक है, देन यू हैव ये, अब ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि जैसे आपका प्लस हो गया, ऐसे ही आप माइनस कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ? मुझे चेक करना है नम इज लेस देन num2 और नॉट। आपको क्या लगता है रिजल्ट क्या आएगा? और इसको मैं स्टोर कर रही हूँ लेट्स से एक अनदर वेरिएबल में, जो कि मैंने लिया z। क्या रिजल्ट आना चाहिए? कैन एनीबडी टेल मी? ये आ रहा है फॉल्स। फॉल्स मतलब मैंने क्या लिखा है? नम, नम मीन्स 10, 10 लेस देन 6। जो जब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये जो रिजल्ट्स आते हैं ये हमारे ट्रू और फॉल्स में आते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा होता तो ये मुझे क्या आंसर देता? ये मुझे आंसर दे रहा है ट्रू। ऑलराइट, सो ये है आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है? लॉजिकल मतलब होता है ट्रू फॉल्स। ओके, लॉजिकल मतलब होता है ट्रू फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लॉजिक ले रही हूँ 1, जिसे मैंने डाल दिया ट्रू। इक्वल्स टू ट्रू। एंड मैं एक और लॉजिक ले रही हूँ, लॉजिक 2, इसमें मैंने लिख दिया फॉल्स। ओके, नाउ मैं एंड कर रही हूँ। ओके, ठीक है, लॉजिक 1 लिया ट्रू, लॉजिक 2 लिया फॉल्स। नाउ मैं इनको एंड और करके देखते हैं। लॉजिक 1, लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2। नाउ क्या रिजल्ट आना चाहिए? क्या कोई बता सकता है? फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या आता है? फॉल्स। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। अगर मैं 1 एंड 0 करूंगी तो मुझे ऑब्वियसली रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिल गया फॉल्स। राइट, अगर मैं इसको और करूं तो log 1 और log 2।
यहाँ पर एक अगर आप देखेंगे बैक स्पेस के नीचे एक ऐसे करके नंबर होता है ये। एक मिनट, मेरा अभी ये काम नहीं कर रहा है कीबोर्ड पे। सो एक और का सिंबल होता है, इस और का सिंबल होता है, आपको वो और का सिंबल यूज करना है। ये बैक स्पेस के नीचे होता है, जो बैक स्लैश होता है उसके ऊपर आप शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो आपको इस तरह का सिंबल मिल जाएगा, वो आपको प्रेस करना है। दैट इज व्हाई इट इज टेलिंग मी द एरर अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन, क्योंकि मैं वो प्रेस नहीं कर पा रही हूँ पर्टिकुलर की नंबर। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ ऑपरेटर्स जो कि हम आर में यूज करते हैं। अब कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जहां पर हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो कुछ कुछ वेक्टर्स हो गए जैसे आपके वेक्टर्स, कुछ कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए जैसे आपके वेक्टर फ्रेम्स, ये सब आपके क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। टेबल, ये सब होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो अगर मुझे वेक्टर बनाना है तो मैं वेक्टर कैसे बनाऊंगी? सी वेरिएबल से। ठीक है, मैंने ले लिया वेक्टर वेक्टर 1 और इसमें मैंने वेक्टर जाएगा मेरा इस तरह से। हम ऐसे वेक्टर को लिखते हैं 1, 2, 3। ये मैंने एक वेक्टर बनाया जिसके अंदर 3 नंबर्स हैं। ठीक है, फिर मैंने एक और वेक्टर बनाया जहां पर मैं क्या कर रही हूँ? वेक्टर 2 और यहाँ पर 4, 5, 6। तो ये हमारा दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया। अब अगर मुझे इसमें देखना है कि मेरी क्लास क्या है, मतलब वेक्टर 1 की क्लास क्या है और वेक्टर 2 की क्लास क्या है, तो अब आप देखिए कैसे आएगा। ओके, ये सी जो है मैंने कैप्स में ले लिया, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, एक सी कैपिटल चला गया है। अब ठीक है, ठीक है, वो सी यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल हो गया था ना। आई वांट टू सी कि मेरी क्लास क्या है वेक्टर, किस वेक्टर की? मुझे वेक्टर देखना है 1। तो आपको क्या लगता है क्या क्लास आनी चाहिए? न्यूमरिक। यानी कि वेक्टर 2 में किस तरह के नंबर्स हैं? न्यूमरिक हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक और वेक्टर ले लिया वेक्टर 3 और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ए। A1 2 1 3 और अब मैं इसकी क्लास डिपेक्ट कर रही हूँ कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है, किस तरह की क्लास है इसके अंदर। सो आई एम यूजिंग इट वेक्टर 3। नाउ इट इज सेइंग, इसने बोला कि कैरेक्टर इसके अंदर कैरेक्टर है। क्यों इसने बोला कैरेक्टर है? क्योंकि इसने फर्स्ट इसको रीड किया ए, और ए क्या है आपका? आपने इसको सिंगल कोट में लिखा है, तो वो रेस्ट ऑफ द डेटा भी किस में रीड करेगा? कैरेक्टर में। ठीक है, तो ये है वेक्टर, इसे हम बोलते हैं वेक्टर। अब अगर मुझे पर्टिकुलर 1 वेरिएबल चाहिए, फर्स्ट जो अगर आप ये देखें A1 1 3, अगर मुझे इसमें से सेकेंड वैल्यू चाहिए, या वेक्टर 2 की बात करें, मुझे इसमें से 5th वेरिएबल डिस्प्ले कराना है, तो मैं इसको कैसे डिस्प्ले कराऊंगी? हाउ विल आई डिस्प्ले इट? मैं इसको लिखूंगी इस तरह से, वेक्टर 2 में मुझे चाहिए सेकंड पोजीशन। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं 2 सेकंड पोजीशन, या मैं इसको कर देती हूँ हाँ सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन क्या आ रही है मेरी वेक्टर 2 के अंदर? ये फर्स्ट पोजीशन का नंबर है, ये सेकंड पोजीशन की वैल्यू है, ये थर्ड पोजीशन की वैल्यू है। सो आई गॉट दिस 5। ठीक है, सो ये रहा हमारा वेक्टर। देन वी हैव अनदर डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं लिस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिस्ट। लिस्ट को हम डिनोट करते हैं LIST से, और लिस्ट मतलब होता है यहाँ पर, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जब हम वेक्टर 1 डाल रहे थे तो यहाँ पर हमने सारे नंबर्स लिए, वेक्टर 2 में हमने सारे नंबर्स लिए, वेक्टर 3 में मैंने एक कैरेक्टर लिया, बाकी सारे नंबर लिए। तो
वेक्टर 3 को जब मैं क्लास डिपिक्ट करने गई तो उसने बोला सारे कैरेक्टर है, जबकि ऐसा नहीं है, कैरेक्टर सिर्फ एक है, बाकी दोनों नंबर्स हैं। सो अब ये समझ जाना चाहिए आप लोगों को कि वेक्टर होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स स्टोर करता है, होमोजीनियस एक जैसे, होमोजीनियस एक जैसे। अगर उसको एक मिल जाएगा तो वो एज्यूम कर लेगा कि बाकी भी मेरे कैरेक्टर होंगे, ठीक है, उसने फर्स्ट एज्यूम किया कि कैरेक्टर है, तो वो बाकी भी एज्यूम कर लेगा कि ये भी कैरेक्टर होंगे। दैट इज वाई वो मुझे डिपिक्ट क्या कर रहा है, कैरेक्टर। तो इतना समझ में आ गया, वेक्टर स्टोर्स होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। नाउ व्हेन जब बात आती है लिस्ट की, तो लिस्ट में क्या होता है, मैं लिस्ट को एल आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैंने L1 ले लिया, ठीक है, L1 इक्वल्स टू लिस्ट, ठीक है, ओके, प्रेस नहीं हो रहा, जस्ट अ मिनट, L1 इक्वल्स टू लिस्ट। जैसे हम वेक्टर के लिए C यूज करते हैं, ऐसे ही हमें लिस्ट के लिए हम LISC यूज करेंगे, और फिर मैं इसमें यहाँ पर हम हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स डालेंगे, जैसे 1 कॉमा A, ठीक है, और फिर मैंने ऐड किया 3। अगर मैं इसकी क्लास डिपिक्ट करने जाऊं, क्लास ऑफ L1, तो क्या आएगा, ये मुझे बता रहा है कि क्लास 1 जो है वो लिस्ट है, ठीक है, वो तो समझ में आ गया क्योंकि वेक्टर जो हमने फंक्शन लिया है वही लिस्ट का लिया है। अब अगर मुझे चाहिए कि जो मेरा सेकंड पोजीशन है लिस्ट के अंदर, जो सेकंड पोजीशन है विच इज ए, वो किस क्लास की है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगी क्लास L1, क्योंकि हम L1 में हमने स्टोर किया है, उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे क्या नंबर है, समझ गए आप लोग। तो उसने बोला ये लिस्ट है। अगर मैं इसे 2 करूं तो क्या आएगा, ये मुझे क्या प्रेडिक्ट करेगा, ये मुझे लिस्ट दे रहा है। कोई मुझे इसमें गलती बता सकता है, इसमें गलती, इसमें ये 12 मुझे लिस्ट क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने इसमें सिर्फ उसको एक लिस्ट ही दी है, इसे मैंने उसको वेक्टर में कन्वर्ट नहीं करा, राइट, मैंने इसे वेक्टर में कन्वर्ट नहीं करा। तो अगर मुझे नंबर एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे यहाँ पर हम नंबर एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे थे, मैं ए एक्सट्रैक्ट कर रही थी, 1 एक्सट्रैक्ट कर रही थी, तो यहाँ पर भी हमें लिस्ट के अंदर वेक्टर्स देना पड़ेगा। जब तक मैं लिस्ट के अंदर वेक्टर नहीं दूंगी, मुझे वो क्लास नहीं बताएगा, पर्टिकुलर पोजीशन का क्लास नहीं बताएगा, ठीक है, इसीलिए जब मैं 1 और 2 डाल रही हूँ तो वो मुझे L1 की ही क्लास बता रहा है विच इज लिस्ट, अंदर इस वेक्टर की क्लास नहीं बता रहा। अब इसमें आप डिफरेंस देखिए, जब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ L2 इक्वल्स टू लिस्ट, और यहाँ पर मैंने लिस्ट में ऐड किया C, और फिर मैंने ऐड किया 1, 2, 3 या 4, ठीक है। अब मैंने एक लिस्ट के अंदर एक वेक्टर बना दिया, राइट। अब आप देखिए C A C D, आप समझ रहे हैं, एक और वेक्टर दे दिया, एक और वेक्टर ले लेते हैं, लेट्स से इसको हम ले लेते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको, आई होप आ गई होगी। ये मैंने क्या लिखा है, मैंने लिस्ट के अंदर वेक्टर्स लिखे हैं, और वेक्टर क्योंकि मैंने बताया वो क्या करता है, वो सिर्फ होमोजीनियस एलिमेंट स्टोर करेगा, तो मैंने इसे सिमिलर एलिमेंट्स डाले हैं कि ये सारे न्यूमरिक है तो मैंने न्यूमरिक ऐड करे हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हैं तो मैंने कैरेक्टर्स ऐड करे हैं, ये सब लॉजिकल हैं, ट्रू फॉल्स हैं तो मैंने ये ऐड करे हैं, है ना। नाउ गिव मी अ सेकेंड, ओके, यहाँ पर हमने एक गलती करी है, सी को हमने बंद नहीं किया,
यहाँ पर मुझे कोई करेक्ट कर सकता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है? आई हैव नॉट मैम क्लोज। ए में नहीं किया है मैम क्लोज ए को। राइट, ए नहीं किया क्लोज। डी पे मैंने अब कॉलम को कामा नहीं ऐड किया। ओके, मैम लास्ट में एक एक्स्ट्रा स्मॉल ब्रैकेट है प्रोबेबली, शायद इसलिए। राइट। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें स्पेस चाहिए तो आई विल बी यूजिंग दिस एल। and it should be a bigger bracket. ठीक है, second का second I want to find out. That's why I changed the brackets. Okay. So I'm asking कि second vector में second position क्या है? Second vector में I got the second position as B. I hope this particular thing is clear to all. So this is what data structures. एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर्स। वो कैसे काम करता है वो मैट्रिक्स सबको पता होगा। 2D होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर्स होता है जहाँ पर मैट्रिक्स किस तरह से स्टोर होता है, अगेन वेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर होता है। सेम तरीका होता है यहाँ पर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स ले लेती हूँ। अब ये क्यों इसमें प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेट्रोजीनियस डेटा ले रखा है। सी में न्यूमरिक है एंड देन कैरेक्टर है अगेन, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये है नॉन न्यूमरिक मैट्रिक्स, यानी कि मुझे क्या चाहिए, आई ओनली वांट होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर्स। जो मैट्रिक्स होता है वो 2D होमोजीनियस डेटा होता है। अगर मैं इसे लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ, और मैंने बोला होमोजीनियस डेटा यानी कि सारे नंबर्स होने चाहिए। लेट्स से ये, तो ये मेरा एक मैट्रिक्स बनकर आ जाएगा। ठीक है, M1 स्टोर हो गया। एंड अगर मैं इसमें बताऊं कि इनको M1 M1, अच्छा ये तो अभी एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को मुझे किस तरह से स्टोर करना है, मतलब रोज एंड कॉलम्स कैसे होने चाहिए, तो मैं यहीं पे ऐड कर देती हूँ कि मुझे नंबर ऑफ रो मेरी कितनी होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ही इसको ऐड करना पड़ेगा। n रो, लेट्स से n रो 2 and n column let's say 3. तो अब आप देखिए मेरा m किस तरह से बनकर आ रहा है, M1, राइट।
ऐसे ही हम इसको M1 को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ, जहाँ पर हमें डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है आर के अंदर. तो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स का भी यूज़ कर लिया. अगर मुझे देखना हो कि मुझे M1, जो मेरा ये M1 है, इसमें 1 और 2 एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? अगेन आई विल बी यूजिंग M1 एंड स्क्वायर ब्रैकेट 1 2. ओके, M1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 comma 2. आई गॉट द रिजल्ट एज 3. मैंने बोला कि मुझे वन, देखिए 1 2 3 4 5 6 मुझे ये मिला. तो मैंने पूछा 1 एंड 2 चाहिए मुझे, फर्स्ट रो में जाइए एंड सेकंड कॉलम पिक करिए. तो सेकंड कॉलम मुझे उसने पिक कर दिया, ये 0 से हमने स्टार्ट किया यहाँ पर. तो दिस इज व्हाट आर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है. इतना सब क्लियर है आप लोगों को? ये तो बहुत बेसिक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. इस पर्टिकुलर स्लाइड में, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप लोगों को कोई डाउट है? आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझे इस स्लाइड से रिलेटेड. If you have any questions, you can ask. अगर थ्योरी से रिलेटेड व्हाट इज क्लस्टर एनालिसिस, नीड ऑफ क्लस्टर, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. दिस इज अ क्यूए राउंड फॉर ऑल ऑफ यू. सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्लस्टर एनालिसिस क्लियर है. इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट्स. Ma'am, with your permission, shall we end this session? Yes, yes, yes. If you do not have any doubt, we can. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful lecture on cluster analysis. Now, I would like to invite Kriti Khareji to present her vote of thanks. Am I audible? Just to make sure. Yes, yes, you are. Okay, so good afternoon, everyone. I, Kriti Khare, research scholar of School of Commerce and Research Center, Maharaja Chhatrasal, Bundelkhand University, regard this as a privilege to extend vote of thanks on this ongoing add-on course. As once a great man said, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it up. Thus, with fathoming this quote, I would like to extend my hearty thank you to our speaker, Dr. Kajol Kathuria ma'am, on the behalf of everyone present here. I'm sure the students will have a lot to take away from your lecture. The way you explained things and this particular topic was very, very explicit because the examples that you have used to make us understand about this particular topic were very catchy as they were related to our day-to-day life. The information provided by you on the cluster analysis will be quite handy for us. So thank you so much, ma'am, for your precious time. And lastly, thank you to our course coordinator and for fellow participants for joining. With that, I rest it here. Thank you so much and have a very good day. Thank you. Thank you, everyone, for joining us.